Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. Hello dear students, welcome to another session of grammar. Today we are going to study parts of speech, and in that we are going to learn something about verbs and their types. Now the next slide is about definition and meaning of verb. Wren and Martin defines verb as a word used to denote doing, having or being something about some person or thing. In other words, a verb is a word that describes a work done by someone or something, a work done to someone or something, or what condition a person or thing is in. Terms which let us know that an action has taken place or a state of being or condition are called verbs. Examples: sing, work, walk, talk, think, read, see, etc. So according to Wren and Martin, a verb is a word which denotes an action or condition of being or having. Now in Hindi, I will explain it in Hindi. रैन एंड मार्टिन के अनुसार वर्ब की परिभाषा है कि एक ऐसा शब्द जो डिनोट यानी कि बताता है, इंगित करता है कोई काम करना, होना या पजेस करना, अपने पास रखना। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ वर्ब इज़ ए वर्ड, एक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो वर्णित करता है, डिस्क्राइब करता है ए वर्क डन बाय समवन, किसी के द्वारा किया गया कोई काम या कुछ, और वर्क डन टू समवन, वर्क डन टू समवन किसी के प्रति किया गया कुछ काम, जैसे किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ लिया, और समथिंग, या किसी वस्तु के साथ कुछ कार्य किया, जैसे पेन से लिखा, और व्हाट कंडीशन ए पर्सन और थिंग इज़ इन, और किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, जैसे टेबल के ऊपर चौक है या क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं। टर्म्स विच लेट अस नो दैट एन एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कुछ इस प्रकार के शब्द विच लेट अस नो जो हमें बताते हैं कि एक काम हो चुका है या हो रहा है, ये शब्द वर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स: सिंग, वर्क, वॉक, टॉक, थिंक, रीड, सी एट्सेट्रा। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कार्य करने की परिस्थिति को दर्शाया जा रहा है। सिंग मीन्स गाना गाना, वर्क कार्य करना। As you can see in the above examples, all the words mentioned describe some kind of activity, hence they are all verbs. So these above example words are the words that describe or denote some kind of activity, some action. So they are called verbs. To make it easier to remember, doing words are called verbs. If you want to make it easy, then remember, if there is being some work done, doing words are called verbs. हिंदी में समझें कि जैसे करना, खाना, पीना, जिसमें कोई कार्य हो रहा है। Some more examples of verbs are I bought groceries. मैंने ग्रोसरीज, राशन का सामान खरीदा, किराने का सामान, जो भी आप खाने पीने का। They were waiting outside. Waiting, इंतज़ार कर रहे थे बाहर। So in these italicized words you see that some work is being done to something. Groceries यहाँ पर something है, और
देवर, दे पर्सन है जो बाहर इंतजार कर रहे थे। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। Now this slide tells us about some types of verbs. Two types are mainly there. There are mainly two types. Based on the transfer of action denotes by the verb from the subject to the object, verbs are classified into two main kinds, namely transitive verb and intransitive verb. Based on the transfer of action means the action is being transferred to some ऑब्जेक्ट, किसी कर्म के ऊपर उस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। इसके हिसाब से और इसके आधार पर, बेस्ड ऑन मतलब इसके आधार पर क्रियाओं को दो मुख्य विभागों में या दो मुख्य प्रकार में विभाजित किया जाता है। वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। Let us learn about transitive and intransitive verbs in detail with examples for being better understanding. So in the next slide we will be learning about transitive and intransitive verbs, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब है अकर्मक क्रिया जिसमें कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म नहीं होता है। अब अगली स्लाइड में हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब as defined by Wren and Martin, a transitive verb is a verb that denotes an action that passes over from the doer or subject to an object. So according to Wren and Martin, some action is being passed or transferred over to some object or some subject, then the verb is transitive. सकर्मक क्रिया कब होती है? जबकि एक कार्य उसका प्रभाव ट्रांसफ़र हो रहा है एक डूअर माने कर्ता या सब्जेक्ट से लेकर के एक ऑब्जेक्ट तक। तो कोई कर्ता अपने कर्म तक किसी कार्य को पहुंचा रहा है तो वहाँ पर वो सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्म उससे प्रभावित हो रहा है, या सीधे सीधे उस कहने का आशय यह है कि उस क्रिया के अंदर एक कर्म यानी कि एक ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। To put it in other words, when the verb requires an object to express a complete thought, it is known as a transitive verb. Let us see with this example. To put it in other words, if you want to understand in other words, दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो एक क्रिया को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। रिक्वायर्स मीन्स चाहिए होता है। टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, अगर कोई भी उसको कंप्लीट विचार व्यक्त करना हो तो वो वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। हम किसी एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ही प्लेड द पियानो, उसने पियानो प्ले किया यानी कि पियानो बजाया। इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ब प्लेड इज ट्रांसफर्ड इनटू एन ऑब्जेक्ट, द पियानो। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। नाउ another example is she writes novels. दूसरा एग्जाम्पल है वो नॉवेल्स लिखती है। तो जो राइट वर्ब है या जो प्लेड द पियानो वाले सेंटेंस में प्लेड वर्ब है उसका प्रभाव इस पर आ रहा है नॉवल पर या पियानो पर। तो वो प्रभाव आने से वो कर्म है और वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो इन these sentences we see that these two verbs are transitive verbs because they possess in themselves some object. One object is piano and the other object is novel. Here the verb writes is transferred onto the object novel, which makes it a transitive verb. आप इसको सीधे अगर हिंदी में आप समझना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। आप ही और प्लेड के बीच में वॉट रख दें या क्या रख दें। शब्द कौन सा? क्या।
या फिर आप शी और राइट्स के बीच में क्या रख दें, तो फिर क्या सेंटेंस बनेगा हिंदी में? वो क्या बजाता है, वो क्या लिखती है। तो वो क्या बजाता है? पियानो। वो क्या लिखती है? नॉवेल्स। तो जिसका अभी आंसर व्हाट से आ जाता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो हियर वी सी दैट द वर्ब, it is denoting the answer to what, and this answer is piano or novels. So we can say that these two verbs are transitive verbs. इनका आंसर क्या से आ रहा है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिस्ट ऑफ सम ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट है हमारे पास में। एक है एडमायर। एडमायर, अफोर्ड, एडमायर यू नो प्रशंसा करना, अफोर्ड किसी चीज़ का खर्च वहन करने में क्षमता रखना, अलाउ किसी को किसी चीज़ के लिए परमिशन देना, ब्रिंग लाना, ब्लेम दोषारोपण करना, बाय खरीदना, कंटेंट अपने अंदर पजेस करना, रखना, कॉस्ट कीमत, कट काटना, डिनाई मना करना, एन्जॉय एक्सक्यूज़, फिक्स गेट ग्रीट स्वागत करना, हैव रखना, पजेस हिट मारना, इनफॉर्म सूचना देना, लैंड उधार देना। इस प्रकार से ये बहुत सारी वर्ब्स हैं। लेट, लव, मेक, मीन, नेम, नीड, ऑफर, ओ, पिक, प्रीफर, पुट, क्वेश्चन, रिमाइंड, सेलेक्ट, शो, टेक. So in these all words you see that they give an answer to what. वो क्या आंसर देते हैं? व्हाट से आंसर देते हैं। एडमायर करना, या फिर दे गिव द आंसर टू whom, किसको या किसकी। तो एडमायर प्रशंसा करना, किसको प्रशंसित करते हैं, है ना? क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो कार अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? अलाउ, किसको अलाउ करना, तो ये whom से आंसर आ रहा है। ब्रिंग, क्या लाना, ब्लेम, क्या दोष लगाना, बाय, क्या खरीदना, कंटेन, अपने अंदर क्या रखना। इस प्रकार से ये, जैसे ग्रीट वर्ड है, आप देख रहे हैं थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड है ग्रीट, अभिनंदन करना या फिर स्वागत करना किसी का। तो ग्रीट किया, किसको किया, किसको हेलो किया, किसको नमस्ते किया, किसको प्रणाम किया। इस तरह से ये आंसरेबल, दिस वर्ड इज़ आंसरेबल टू सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट अपने अंदर छुपाए हुए हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। I hope you can understand now. Next slide. Intransitive verb. According to Renan Martin, an intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which expresses a state of being. Now the next definition of intransitive verb. Renan Martin कहते हैं कि intransitive verb क्या है? एक ऐसी verb जो बताती है एक action which does not pass over to an object, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करता, किसी कर्म को प्रभावित नहीं करता, उस पर ट्रांसफ़र नहीं होता। इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, और विच एक्सप्रेसेस ए स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर किसी बीइंग या होने की स्थिति को, ये इस स्टेट माने परिस्थिति को शो करता है। सो दीज टू थिंग्स आर देयर। वन इज़ intransitive verb that denotes an action but it does not pass over to an object, it is not transferred to an object, and it expresses a state of being. So these two things are there in an intransitive verb's definition. To put it in another words, intransitive verb do not require an object to express a complete thought. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स को
एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है पूरा कंप्लीट थॉट बताने के लिए, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए या पूरा विचार बताने के लिए दे डू नॉट रिक्वायर माने चाहिए होता है, उन्हें क्या एक कर्म नहीं चाहिए होता है। सो वो बिना कर्म की क्रियाएं होती हैं, उनको इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया कहते हैं। दे आर नॉट डन टू समथिंग और समवन, वो किसी के प्रति नहीं की जाता है कोई कार्य और किसी के लिए नहीं किया जाता। कुछ कार्य किसी समथिंग किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाता या किसी के प्रति नहीं किया जाता। एंड कैन एक्सप्रेस ए कंप्लीट एक्सप्रेशन विद द सब्जेक्ट अलोन, खाली वो सब्जेक्ट से ही, अलोन मतलब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता मात्र से ही वो पूरे विचार को व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर विद सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स से हम इनको अच्छे से समझ सकेंगे। शी इज़ इल, वह बीमार है। दे वेंट स्कीइंग, वो स्कीइंग का मतलब स्कीइंग होती है बर्फ़ पर जो आप देखते हैं, एक क्रिया होती है बर्फ़ पर चलने की, जिसमें कि एक या दो स्टिक्स यूज़ की जाती हैं। इन दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट शी एंड दे, इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है शी है और दे है, दे डू नॉट रिक्वायर द वर्ब इल एंड स्कीइंग टू पास ओवर ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट टू कन्वे ए सेंसिबल मीनिंग। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इल है या स्कीइंग है, इसको कोई क्रिया की कर्म की आवश्यकता नहीं है कोई सेंसिबल मीनिंग बताने के लिए। हैंस दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इन सिंपलर वर्ड्स यू कैन नो दैट earlier we saw that the verbs which are answerable to what and whom are transitive verbs, but in these two sentences we see that they are not answerable to what and whom। हिंदी में समझिए कि यदि हम एक सेंटेंस लेते हैं राम ईट्स अ मैंगो, राम और ईट्स के बीच में हम क्या लगा देते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में करके देखा था। तो राम क्या खाता है, मैंगो खाता है, तो मैंगो एक ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पर आप लगा कर देखें, या फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल और देखिए, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। अब आप डॉग और बार्क्स के बीच में क्या लगा कर देखिए, कौन सा शब्द लगाएंगे, क्या, व्हाट। तो आप पूछेंगे कुत्ता क्या भौंकता है, कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। शी वीप्स है ना, तो वीप और शी के बीच में आप क्या लगा कर देखिए या किसको लगा कर देखिए, कोई आंसर नहीं आ रहा है। सो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप आसानी से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। 1, दर्द होना, अग्री सहमत होना, अपीयर दिखाई देना, अग्री, बिकम, कम, क्राई, डांस, डाई, एग्जिस्ट, फॉल, गो, हेजिटेट, हिचकिचाना, लाफ हंसना, गो जाना, लिव जीना, लुक देखना, अकर होना, प्रे प्रार्थना करना, रेन बारिश होना। इस तरह से ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि इंट्रांजिटिव है। रिमेन, राइज, रेस्पॉन्ड, सिट, स्लीप, स्माइल, स्टैंड, स्विम, thrive, yawn, etc. Now the usage of verbs transitively and intransitively. This is a different thing. प्रयोग कैसे होता है शब्दों का अकर्मक के रूप में और सकर्मक के रूप में। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, दे आर बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज बोथ ट्रांजिटिव एंड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स।
It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than it is transitive or intransitive. So ये कहने का आशय इनका ये है कि कुछ शब्दों को हम ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब कहने के बजाय हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनका ट्रांजिटिवली यानी कि ट्रांजिटिव के तौर पर या इंट्रांजिटिवली यानी कि अकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। दो प्रकार से एक ही वर्ब का यूज़ किया जा सकता है। It comes down to the usage of the verb in a sentence. Let's see this with a few examples. हमें कुछ एग्जाम्पल्स में इसको देखना चाहिए। He plays the piano. पहले अपन ने देखा था यही सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब था। He will play tonight. अब आगे अपन देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, तो ये इसको इंट्रांजिटिव के रूप में देखा जाएगा सेंटेंस को। आई सैट, मान लीजिए एक सेंटेंस है आई सैट, मैं बैठा, ठीक है। लेकिन उसी सेंटेंस को उसी सैट वर्ब के साथ में आई सैट द बेबी ऑन द सोफ़ा मैं इस तरह से बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, तो क्या होगा कि ये सैट द बेबी ये उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था पहले कि आप आई और सैट के बीच में क्या लगा दें, व्हाट लगा दें या फिर क्या लगा दें। हिंदी में कौन सा शब्द लगा दें? क्या। मैंने बैठाया, या फिर आप whom लगा दें। मैंने आपको दो शब्द बताए थे पहचान के लिए कि what और whom से किसी का आंसर आ जाता है तो वो ट्रांजिटिवली यूज़ हो रही है क्रिया। तो आई सैट, मैंने बैठाया, किसको? बेबी को, बच्चे को सोफ़ा पर। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सैट, मैं खुद बैठा या मैं खुद बैठी, नियर द विंडो, विंडो के पास। तो यहाँ पर मैं बैठी, मैं क्या बैठी, कोई आंसर नहीं आया। लेकिन मैंने किसको बिठाया, ये भी कोई आंसर नहीं आया। फर्स्ट सेंटेंस में कोई आंसर आ रहा है, मैंने किसको बैठाया, बेबी को बिठाया। तो वहाँ पर इस वर्ब का, सिट वर्ब का ट्रांजिटिवली यूज़ हो रहा है और इस विंडो वाले सेंटेंस में इंट्रांजिटिवली इस वर्ब का प्रयोग हो रहा है। दे सैंग द नेशनल एंथम, उन्होंने नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत गाया। नाउ अभी आप यहाँ देख रहे हैं सिंग वाला वर्ब यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दे सैंग व्हाट डिड दे सिंग, उन्होंने क्या गाया, नेशनल एंथम गाया। यहाँ पर आंसर आ रहा है, आप क्वेश्चन बनाकर पूछते हैं व्हाट से, तो लेकिन उन्होंने गाया सिर्फ ये बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, सेंटेंस यहीं ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, दे सैंग। तो यहाँ पर इसका प्रयोग इंट्रांजिटिवली हो रहा है। These things list of verbs used transitively as well as intransitively। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी लिस्ट है जो कि दोनों तरह से यूज़ होते हैं। दे आर बोथ यूज्ड एज ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली। वर्ब्स क्या है? आंसर है, आस्क है, बिगिन है, बोरो है, चूज़, डांस, ईट, एंटर, फेल, ग्रो, हेल्प, हरी, जंप, नो, लीव, मैरी, मीट, ओबे, पे, प्रॉमिस, रीड, सी, सेल, सिंग, टेल, टच, वॉक, राइट। अब आप देखिए इसके अंदर व्हाट और whom से दोनों से ही आंसर आते हैं। जैसे आप पहला शब्द देखेंगे, आंसर, उसने क्या उत्तर दिया। इसी तरह से आप दूसरे वर्ड्स भी देख सकते हैं। मैरी देखिए, किसको मैरी किया, टू whom ही वॉज मैरिड। प्रॉमिस देखिए, इसमें भी whom वाला शब्द आ जाएगा, किसको प्रॉमिस किया। सिंग, क्या गाया। टच, किसको टच किया, है ना। तो इस तरह से
ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रूप में भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि उनका क्या और किसको से भी आंसर आ रहा है, और इंट्रांजिटिवली भी उनको यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे शी लेफ्ट, आप तीसरी लाइन का पहला शब्द देखिए लीव, इसकी थर्ड फॉर्म अपन लेफ्ट यूज़ करते हैं, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। शी लेफ्ट, वो चली गई, ठीक है। लेकिन जब अपन उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि शी लेफ्ट द चाइल्ड विद अस, वो बच्चे को छोड़ के चली गई। किसको छोड़ के चली गई? बच्चे को छोड़ गई। शी लेफ्ट हर पेन, उसने क्या छोड़ दिया? अपना पेन टेबल पे ही छोड़ दिया। तो यहाँ ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके अंदर पेन जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, बच्चा आ रहा है, और जब अपन इसको लीव के रूप में यूज़ करते हैं तो खाली क्या आ रहा है? लेफ्ट, वो चली गई। तो इस तरह से ये दो प्रकार से यूज़ होने वाले वर्ब्स हैं। इनकी अपन एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिगर आउट द वर्ब एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ यूज ट्रांसिटिवली और इनट्रांसिटिवली। आई मेड कॉफ़ी, ट्रांसिटिवली है क्योंकि मैंने कॉफ़ी बनाई। क्या बनाई? कॉफ़ी बनाई। दे कुक डिनर, क्या बनाया? डिनर बनाया। शी रैन, वो दौड़ी, क्या दौड़ी? कोई आंसर नहीं आ रहा, इनट्रांसिटिवली। वी वॉच्ड अ मूवी, ट्रांसिटिवली हमने क्या देखा? मूवी देखी। ही विल कम टू नाइट, अब वो क्या आएगा? ये कोई आंसर नहीं आ रहा, इसलिए ये इंट्रांजिटिवली। इसी तरह से अपन आगे देखते जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। लेट्स ईट, हम यहाँ खाएंगे, आगे कुछ भी नहीं बता रहे हैं ये, तो इसलिए इसका यूज़ यहाँ पर इंट्रांजिटिवली होता है। लेकिन अगर हम कुछ खाएं, ऐसे बोलते हैं, या हम खाएं, तो इसमें फ़र्क है। लेट्स ईट, हम खाएं, और हम क्या खाएं? अगर हम लेट्स ईट फ्रूट्स बोल देते हैं तो वो ट्रांजिटिवली हो जाएगी। आई केप्ट द ग्रॉसरीज ऑन द किचन काउंटर, ट्रांजिटिवली मैंने क्या रखा? मैंने राशन का सामान किचन के काउंटर पर रख दिया। शी टॉक्स फास्ट, वो बहुत बातें तेज़ तेज़ करती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या बात करती है, आंसर नहीं आ रहा, बल्कि वे कैसे बात करती है, इस तरह से आंसर आ रहा है। तो ये इंट्रांजिटिव है। नैन्सी टुक अ वॉक इन द गार्डन, ट्रांजिटिवली है। नैन्सी ने क्या लिया? वॉक ली। शी फील्स पेन इन हर स्टमक, वो क्या फील करती है? पेन फील करती है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिवली हो गया। दे वेटेड फॉर आवर्स, उन्होंने इंतज़ार किया। उन्होंने क्या इंतज़ार किया? ये कोई आंसर नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए, इंट्रांजिटिव हो जाती है पर। आई फेल, इंट्रांजिटिवली मैं गिरा, मैं क्या गिरा? कोई आंसर नहीं आया। माई अंकल डाइट, मेरे अंकल की डेथ हो गई, क्या मरे? कुछ आंसर नहीं आया। दे अग्री टू आर कंडीशंस, वो ट्रांजिटिवली यूज़ हो रहा है। किसको सहमत हुए? क्या सहमत हुई? क्या सहमति दी उन्होंने? द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, इंट्रांजिटिवली है ये। सोल्जर्स, उन्होंने क्या लड़ा? यदि हम कहते कि युद्ध लड़ा, बैटल लड़ा, तब तो वो ट्रांजिटिवली हो जाता। लेकिन ब्रेवली कैसे आ रहा है? आंसर कैसे से आ रहा है? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। अगर इसमें बैटल होता तो एक कर्म छुपा होता, युद्ध होता तो एक कर्म छुपा होता। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है? इंट्रांजिटिव। ही इज़ वॉकिंग द डॉग, ट्रांजिटिवली है। दे आर प्लेइंग, वो प्ले कर रहे हैं, मतलब वो कुत्ते को घुमा रहा है या वो खेल रहे हैं, तो वो यहाँ पर देखिए इंट्रांजिटिवली है। अगर वो प्लेइंग फुटबॉल या क्रिकेट होता तो फिर ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब वाला हो जाता। आई स्पोक टू द लैंडलॉर्ड, मैंने मकान मालिक से बात की, ये ट्रांजिटिवली। किससे बात की? आई रैन द मैराथन, और मैं खाली रैन लिखते तो ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैराथन दौड़ दौड़ी, मैं क्या दौड़ा? मैराथन दौड़ा। तो इसलिए ये दिस वर्ब इज बीइंग यूज्ड एज ट्रांजिटिवली हियर। थैंक्स for today's lesson. That's all for today's lesson. See you again in the next one. Remember to keep practicing because practice makes perfect.